Hello everyone. This is our next lecture on distributed operating system. In this lecture, we are going to cover process management, process allocation, and after that process migration. Okay. This is the unit 4 actually. The first video for unit 4 is previous video. Okay. So for this unit, there will be 3 to 4 videos. Okay, so in previous video we covered resource management. Okay, the approaches for resource management like load sharing, after that task managing, after that load balancing approaches. These all are covered in previous video. You can check that out. After that, in today's video we are going to cover process management. Okay, so we'll see one by one. So first one is process management. So process management involves the activity aimed at defining a process, establishing responsibility, evaluating process performance, and identifying opportunity for improvement. Okay, for before starting process management, we should know what is process, right? The term process was first used by the designer of Multics in 1960s. Since then, the term process is used somewhat interchangeably by the task or job. The process has been given many definitions. For instance, so basically, the process term first used by the Maltesius in the 1960s. So ये जो प्रोसेस वर्ड है, टर्म है, जो सबसे पहले यूज की थी, जो मल्टीसीएस के डिजाइनर थे, उन्होंने 1960 में यूज की थी. ठीक है. सो उसके बाद से ये जो टर्म है ये इंटरचेंजेबली, कभी इसको टास्क कहा जाता है, सम टाइम इट इज कॉल्ड एज अ जॉब. सो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है. इट हैज मेनी डिफरेंट डेफिनेशन. सो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोसेस. Asynchronous activity is also called as process. The animated spirit of a procedure in execution is also called as process. The entity to which processes are assigned is also called as a process. Or at the last, the dispatchable unit is also called as a process. Okay, so a process is the unit of work in the system. In process model, all the software on the computer is organized into a number of sequential processes. A process include PC, registered, and variable. Conceptually, each process has its own virtual CPU. In reality, the CPU switches back and forth among processes. So बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस जो है ये एक वर्क का एक यूनिट बोल सकते हैं, आप एक पार्ट बोल सकते हैं. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं, राइट. सो बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क इन अ सिस्टम. ओके, इन अ प्रोसेस मॉडल हर एक ऑल जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर वो एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होते हैं, राइट. अ प्रोसेस इंक्लूड पीसी, रजिस्टर एंड वेरिएबल. कुछ भी हो सकती है प्रोसेस, वो पीसी भी हो सकती है, दिट कॉल एज रजिस्टर ऑल्सो, एंड इट इज अ वेरिएबल. ओके, सो द प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एक्टिविटीज एम्ड एट डिफाइनिंग अ प्रोसेस. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या हुआ, एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो प्रोसेस है उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट. और जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट, in conventional or centralized operating system, process management deal with mechanism and policies for sharing the processor of the system among all the processes. Okay, but कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट डील विद मैकेनिज्म एंड पॉलिसीज. उसमें जो होता था वो मैकेनिज्म बने होते थे, अलग अलग पॉलिसीज बनी होती थी प्रोसेसर को शेयर करने के लिए. क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या होता है, ओनली वन सिस्टम इज देयर विच इज अ सेंटर ऑफ द सिस्टम. मतलब एक ही सिस्टम से सभी चीजें कनेक्ट होंगी, राइट. उसी से सारी जो और प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगी. मतलब हर चीज एक ही सिस्टम से अल्टीमेटली कनेक्टेड होगी. ओके, बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द मेन गोल ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट इज टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ प्रोसेसिंग रिसोर्सेज एंड द एंटायर सिस्टम बाय शेयरिंग देम अमंग ऑल द प्रोसेसर्स. ओके, अंडरस्टूड. इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो प्रोसेस मैनेजमेंट का गोल क्या है, बेसिकली बेस्ट पॉसिबल यूज करना रिसोर्सेज का, जिसको सारे नंबर ऑफ सिस्टम जो हैं वो यूज कर सके, सारे जो प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज को शेयर कर सके. 3 important concepts are the used in distributed operating system is to achieve this goal. First one is
processor allocation, second one is process migration, and third one is thread. So first two, process allocation and process migration, is we are going to cover in this lecture, and thread we will going to cover in next lecture. Okay. So process allocation is a deal with the processors of deciding which process should be assigned to which processor. Okay. After that, second point is process migration, deal with the movement of process from its current location to the processor to which it has been assigned. Okay. Third is thread. They deal with fine grained parallelism for better utilization of the processing capability of the system. Okay. So the first one is processor allocation. So as the name implies, processor allocation हो क्या सकता है? Before starting this definition terms, processor allocation क्या होगा? Allocation मतलब जो number of processes है हमारे पास, वो कौन सी process के लिए हम लोग allocate कर रहे हैं, that is processor allocation. एक name का meaning हमें जब समझ आ जाता है ना, then we will able to find everything about that topic. Okay, एक idea सा मिल जाता है कि इस topic के अंदर what we are going to do. Okay, so process allocation is it deal with the process of deciding which process should be assigned to which process. इसका क्या काम है? मेन जो प्रोसेसेस हैं वो किस प्रोसेसर के लिए असाइन होने वाली है, that is called as processor allocation. So one interesting aspect of distributed system is that we can choose upon which processor to dispatch a job. This decision and the associated action of dispatching of the job onto the processor is known as processor allocation. So it's up to you, आपको कौन सा definition लिखना है. So first one is also correct and second one is also correct. Okay. One interesting aspect क्या है? Distributed system है that we can choose upon which processor to dispatch a job. हम choose कर सकते हैं कि किस processor के लिए job dispatch करनी है. Distributed system का मतलब ही यही है, उसमें हम independent होते हैं, right? That we can choose upon which processor to dispatch a job. So this decision and the associated action of dispatching the job onto the processor is known as processor allocation. Okay, so centralized approach for processor allocation. Centralized का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पे centralized word is using मतलब एक entity एक processor पे काम depend हो रहा है, right? So it is also called as top down algorithm. It does not require advanced information. इसको हम क्या बोलते हैं? We also call this approach as a top down algorithm. Okay, top down का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे, मतलब हम जब एक प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, राइट? सो इट डज नॉट रिक्वायर एडवांस इंफॉर्मेशन. कोऑर्डिनेटर मेंटेन द यूजर्स टेबल विद वन एंट्री फॉर एवरी यूजर एंड दिस इज इनिशियली 0. सो सेंट्रलाइज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, वेयर वी यूज सेंट्रलाइज वर्ड मीन्स we are depend on one entity, one system, one processor, right? In this we are approaching and we are dependent on coordinator. So coordinator maintain the uses of table with one entry for every user. Coordinator क्या करेगा? एक table बना देगा in which he can maintain the entry for every user, or you can say that he can maintain a entry for every processor and this is initially 0. मतलब वो 0 से स्टार्ट करेगा, राइट? वो एक टेबल बनाने स्टार्ट करेगा, उसके बाद पहले वो उसको 0 सेट करेगा. आफ्टर दैट ही विल मेंटेन द टेबल और ही विल ऐड द एंट्री टू दैट टेबल. ओके, सो यूजर टेबल एंट्री कैन आइदर बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो यूजर्स का जो टेबल होगा दैट कैन बी 0, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड देन कैन बी पॉसिबल कि वो नेगेटिव भी हो सकता है. जीरो वैल्यू इंडिकेट दैट न्यूट्रल स्टेट. जीरो मतलब न्यूट्रल स्टेट, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, सब आइडल है. ओके, पॉजिटिव वैल्यू इंप्लाइज दैट मशीन इज यूजिंग सम सिस्टम रिसोर्सेज. पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है? जो सिस्टम है, जो प्रोसेसर है, वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज. ओके, थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू मीन्स दैट मशीन नीड रिसोर्सेज. मतलब जो प्रोसेसर हैं, जो मशीन्स हैं, उनको रिसोर्स को एक्सेस करना है. So negative means the machines and the processor need the resources. They want to use the resources. Okay. So centralized approach क्या हो गया? It's a top down algorithm.
कोऑर्डिनेटर मेंटेन दैट यूजेस टेबल एंट्री, जिसमें वो पूरा ऐड करेगा दैट जो प्रोसेसर है या जो मशीन्स है दे आर ऑन न्यूट्रल स्टेट, दे आर करंटली यूजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज और दे आर इन नीड ऑफ रिसोर्सेज. ओके, next is hierarchical approach. Hierarchical approach is the best approach. As we already know, in top down approach, hierarchical approach is very important and new approach, right? So process hierarchy is modeled like organization hierarchy. For each group of worker, one manager machine is assigned the task of keeping track of who is busy and who is idle. So manager क्या काम करेगा? Basically जो machine manager है, we are assigning one machine as a manager. So what he will do? He will assign the task of keeping the track of which machine is busy and which machine is idle. Okay, if the system is large, there will be a number of department heads. So some machine will function as deans. तो क्या होगा कि अगर बहुत, ये तो चलो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो the manager will do every task, right? But if the system is large, there are number of thousands of number of machines are there, then what we will do? Will number of department heads will be there, so some machine will function as a head. तो उसमें क्या हो जाएगा? अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत छोटी 50 जो पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? 2 मैनेजर कर सकते हैं. सॉरी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एक जो है वो हमारा जो मेन हेड होगा वो हो सकता है, देयर विल बी 1 मैनेजर, राइट? और जो एम्प्लॉयज हो सकते हैं वो टीम लीड हो सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम, राइट? बट मोस्टली वहां पे क्या होगा? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक मैनेजर भी काम इजिली संभाल सकता है. बट इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नंबर एम्प्लॉयज हैं, तो आप क्या एक मैनेजर उसको हैंडल कर पाएगा? नो, डेफिनेटली नो. तो वहां पे क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मैनेजर्स या नंबर ऑफ हेड्स बना देंगे, जिससे क्या होगा? वो लोग फिर असाइन करेंगे टास्क कि कौन बिजी है, कौन आइडल है, राइट? सो ईच प्रोसेसर मेंटेन कम्युनिकेशन विद वन सुपीरियर एंड फ्यू सबऑर्डिनेट्स. सो एक प्रोसेसर क्या करेगा? वो अपने से ऊपर से भी कोऑर्डिनेट करेगा एंड जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी काम करेगा. जैसे कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो मैनेजर जो है दे विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डायरेक्टर्स और दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद देयर employees, right? He's an intermediator, na? So same implies here that each processor maintain communication with one superior and few subordinates. Okay, when a dean or department head stop functioning or crashes, तो हो सकता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट का हेड है उसने काम करना बंद कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है फॉर एग्जाम्पल वो जो डीन है उसने कंपनी लीव कर दिया. ओके, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, कुछ मेडिकल रीजन की वजह से या उसने वैसे ही कंपनी लीव कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? एक जो डायरेक्ट उसका सबऑर्डिनेट है उसको प्रमोट कर सकते हैं ना, कि उसको हेड बना दिया, कि ऐसे किसी को भी हेड नहीं बना दिया, उसके सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर काम कर रहा था, जिसको नॉलेज है कि वो क्या कर रहा था, उसका जो सबऑर्डिनेट होगा उसको ही हम हेड बना सकते हैं. ठीक है, the choice of which can be made by subordinate themselves. Okay, we can organize these workstation into a tree with all of the worker as leaves. The leaves are then collected into group and each group is given a manager. Each group of the worker becomes the children of their manager in the tree. These managers in turn are grouped together and given a directory. These directors have a common parent which is the root of the tree. One alternative to use a board of director instead of single root. Okay, so this is the diagram. Okay, इसमें क्या है? There is a one president, directors, these are the director, these are the manager and these are the workers. Okay, so under this organization a worker try to maintain its load between a high and low water mark. If it gets too much work or little to work, it tells its manager. Okay, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मान लो 3 एम्प्लॉयज हैं इस मैनेजर के अंदर, हो सकता है एक मैनेजर जो है वो एक एम्प्लॉय बिल्कुल आइडल बैठा है, 2 के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है, इसके ऊपर कुछ लोड नहीं है, तो दे बोथ कैन टेल द मैनेजर दैट यू शुड गिव सम टास्क टू दिस एम्प्लॉय ऑल्सो, राइट? सो मैनेजर क्या काम करेगा? वो जो ये वर्कर्स हैं वो किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजर के साथ. सो its manager will then use this information to try to shift work among its worker to properly balance the load. तो मैनेजर का काम करेगा, उसको लगेगा लाइक कि तो अगर मैनेजर को लग रहा है कि 2 जो एम्प्लॉयज हैं, these
two employees are working hard and this employee is working nothing or it's in idle condition, तो ये मैनेजर क्या करेगा, लोड को बैलेंस कर देगा, इसको भी थोड़ा सा काम दे देगा. द मैनेजर themselves have quotas. If they find themselves with either a shortage or surplus of cycle, they tell their director, who in turn try to balance the load among their manager and so on. हो सकता है कि ये जो 3 मैनेजर हैं इसमें भी हो सकता है कि ये मैनेजर कुछ काम नहीं कर रहा है एंड दीज 2 मैनेजर्स आर वर्किंग हार्ड, तो दे विल कोऑर्डिनेट टू दैट डायरेक्टर. और फिर डायरेक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो काम है उसको डिवाइड कर सकता है. सेम गोज टू हायर, मतलब एक हायरार्की बनी है ना, दैट वर्कर विल गो टू मैनेजर, मैनेजर विल गो टू डायरेक्टर एंड डायरेक्टर विल गो टू प्रेसिडेंट. ओके, सो अब ये डायग्राम है और ये डायग्राम, इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है. सी, अगर एक प्रेसिडेंट है, एक ऊपर प्रेसिडेंट है, वो ही डिसीजन ले रहा है, राइट. अगर एक प्रेसिडेंट है वो ही ऊपर डिसीजन ले रहा है तो एक ऑटोमेटिक डिसीजन बन रहा है ना, कि एक ही बंदा सारे डिसीजन ले रहा है. तो हो सकता है कि उसके डिसीजन में भी हो सकता है समटाइम ही इज ऑल्सो अ पर्सन, राइट, ह्यूमन है ना वो भी, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना. तो हो सकता है कि उसने कुछ गलती कर दिया और उसने नीचे कॉन्वे कर दिया जिससे भी प्रॉब्लम हो जाए. उससे डिसीजन से हो सकता है कि अगर उसने डिसीजन बनाया, हो सकता है कि कोई सिस्टम फेल हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, इफ द टॉप लेवल कमेटी instead of a single node, this provide for some level of fault tolerance. If each member of the committee knows everything, it may be possible for decision to be made even if one fails. The goal of this approach is to reduce the amount of information that must be communicated across the network in order to balance the load. हो सकता है कि एक जो पर्सन है उसका जो उसने जो सोल्यूशन दिया है वो काम ना करे, वो हो सकता है. या हो सकता है कि मान लिया अगर ऊपर वाला ही जो डायरेक्टर था अपना, यू कैन से इस डायग्राम में यू कैन सी प्रेसिडेंट ही कुछ प्रॉब्लम है या वो जो नोड है वो फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे, राइट. इससे क्या है, अगर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, अगर बाई चांस ये वाला नोड जो है फेल हो जाता है या इसका डिसीजन जो है वो काम नहीं आता है, तो किसका डिसीजन आप यूज कर सकते हैं, दिस वन, राइट. तो इससे क्या होगा, अगर बाई चांस अगर वर्स्ट केस में एक डिवाइस जो है या एक प्रोसेसर जो है वो फेल भी हो जाता है, तो उससे क्या होगा, जो काम है वो हमारा रुकेगा नहीं, राइट. हमारा जो काम है वो वैसा है जैसे चलता रहेगा और हम लोगों का जो लोड है वो भी बैलेंस्ड हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रोसेस माइग्रेशन. सो प्रोसेस माइग्रेशन क्या है, प्रोसेस माइग्रेशन इज द relocation of a process from its current location to another node. The process migration is act of transferring process between two machines. So process migration basically क्या है, it's a relocation of a processes from its current location, that is source node, to another node, that is destination node. Okay, so process migration is act of the transferring process between two machines. So basically process migration होता क्या है, ठीक है. So for example, there is one node 1 and node 2. Okay, so now the process, the node 1 is doing some processes and node 2 is doing some processes. Okay, so from N1 the process is transferred from okay, let it be. Okay, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. सो दो डायरेक्टर्स हैं, दो हम बोल सकते हैं, दो डायरेक्टर्स हैं, दो मैनेजर्स हैं. ओके, हो सकता है ना एक कंपनी में दो मैनेजर हैं. ओके, सो एक मैनेजर जो है उसके ऊपर बहुत सारा लोड आ गया है, बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, उसके ऊपर से डायरेक्टर ने उसको कोई और काम दे दिया कि आपको ये वाली एंट्रीज भी करनी है, राइट. तो वो क्या करेगा, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, बट उसके ऊपर अगर ज़्यादा एक और काम आ गया तो उसका जो है लोड जो है वो बढ़ गया. और जो दूसरा प्रोसेसर है, जो दूसरा मैनेजर है वो आइडल है, उसके पास इतना काम नहीं है, राइट. तो जो उसका काम है वो हम उसके दूसरे को माइग्रेट कर सकते हैं ना, अगर वो आइडल स्टेट पे है देन वी कैन माइग्रेट ना. तो सेम थिंग इज इम्प्लाइज हियर दैट one process is migrated from one process to another process. Okay, for example, here is the example of the process migration. So this is the source node, this is the destination node. Okay, so from process P1 is in execution. यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 जो है एग्जीक्यूशन में है, राइट. और जो डेस्टिनेशन का जो नोड है वो यहाँ पे आइडल बैठा हुआ है.
तो प्रोसेस P1 क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा अपना लोड जो है वो डेस्टिनेशन नोड के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, रिज्यूम हो गया, राइट। और यहाँ पे अगर ये वाला प्रोसेस जो है वो इसके पास चला जाएगा तो ये वाला जो लोड है वो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाएगा ना, और वो वाला आइडल स्टेट पे चला जाएगा, राइट। और ये जो टाइम, जो इतना टाइम इसका एग्जीक्यूशन को, जो प्रोसेस को ट्रांसफर करने में लगा, दिस इज फ्रीजिंग टाइम, मतलब उस टाइम पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन सस्पेंड हुआ एंड द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर इज ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन मोड, तो ये जो टाइम है दिस इज फ्रीजिंग टाइम, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, इस टाइम को हम बोलेंगे दैट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग टाइम। एंड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू डेस्टिनेशन नोड, after that the execution will resume and the destination node will do the process P1 execution, okay। सो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कुछ नहीं है बताने वाला। यहाँ पे प्रोसेस P1 अपना काम कर रही है एंड जो डेस्टिनेशन नोड है वो आइडल बैठी हुई है। तो सोर्स नोड ने क्या किया, अपना जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है वो डेस्टिनेशन नोड को दे दिया। जब उसने अपना ट्रांसफर जो है वो शिफ्ट किया है तभी उसने P1 का एग्जीक्यूशन सस्पेंड कर दिया है। एंड जब P1 का एग्जीक्यूशन डेस्टिनेशन नोड के पास आया, देन P1 ने उसका एग्जीक्यूशन किया है। And the time between the execution suspend and execution resume is known as freezing time. उस टाइम पे कोई execution नहीं हो रहा था, okay? Okay, so a process may be migrated either before it start executing on its source node or during the course of execution. Process कब migrate हो सकती है? When it start its execution and during the course of the execution, okay? The former is known as non-primitive process migration. इसको हम क्या बोलेंगे, non-primitive process migration बोलेंगे। And the latter is known as preemptive process migration. Preemptive process migration is costlier than non-primitive process migration since the process environment must also accompany the processes to its new node on already executing process, okay? So the process execute on the टारगेट मशीन। कहाँ एग्जीक्यूट होगी, टारगेट मशीन पे होगी ना, क्योंकि उसको ट्रांसफर किया है। द एम फॉर माइग्रेशन इज टू मूव प्रोसेसेस फ्रॉम हेवीली लोडेड टू लाइटली लोडेड सिस्टम। हम माइग्रेशन कर ही क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग द माइग्रेशन, बिकॉज we are trying to lighten the load of the system, okay? So basically जिस सिस्टम के ऊपर हैवी लोड है, we will move the load of that system to लाइटली लोडेड सिस्टम, ताकि जो दोनों है वो इक्वली वर्क कर सके, राइट। दिस एनहांस द परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन। अगर कोड माइग्रेशन होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होगी ना, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर एक सिस्टम के ऊपर आपने ज्यादा लोड डाला है एंड सेकंड के ऊपर कम लोड है, तो एक ही सिस्टम पे ज्यादा लोड आएगा तो उससे क्या होगा, वो स्लो काम करेगा ना। एक ने अपना काम कर दिया एंड ही इज इन आइडल स्टेट एंड सेकंड वन इज कंटिन्यू डूइंग इट्स टास्क हेवीली लोडेड, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस विल ऑब्वियसली डिक्रीज ना। तो इफ वी माइग्रेट वन प्रोसेसेस फ्रॉम द हेवीली लोडेड सिस्टम टू लाइटली लोडेड सिस्टम, तो क्या होगा, दोनों बराबर काम करेंगी एंड द परफॉर्मेंस विल बी एनहांस, ओके। So the processes that interact intensively can move to the same node to reduce the communication cost. Communication cost भी उससे ultimately कम होगा यार। The hope of process migration is that it will allow for better system utilization of the resource. अगर हम लोग लोड को शेयर कर रहे हैं, ओके, heavily loaded system से हम लोग lightly loaded system पे जा रहे हैं, तो सिस्टम का यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा ना, अल्टीमेटली अच्छा होगा, क्योंकि दोनों को बराबर काम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो रहा है, राइट। सो द लॉन्ग रनिंग प्रोसेस मे बी मूव्ड बिकॉज द मशीन इज रनिंग ऑन विल बी डाउन, प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ यूनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज, ओके। आफ्टर दैट, सो ये जो है वो एक आप बोल सकते हैं, मैंने आपके लिए डायग्राम्स बनाई है बिफोर माइग्रेशन एंड आफ्टर माइग्रेशन की, ठीक है। सो इसमें क्या है, प्रोसेसर माइग्रेशन एनेबल डायनेमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट रेजिलेंस, ईज्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटा एक्सेस लोकेलिटी। आफ्टर माइग्रेशन द प्रोसेस ऑन द सोर्स सिस्टम एंड द क्रिएट इट ऑन टारगेट सिस्टम, द प्रोसेसर इमेज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड एनी लिंक मस्ट बी मूव्ड। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बिफोर माइग्रेशन क्या है, दिस इज P1 P2 P3 P4 P5 एंड P2 P3, दिस इज P1 P2 P3, राइट। सो सॉरी,
हमने माइग्रेशन में क्या किया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है P1 P2 है और इसमें हमने P3 P4 को रखा है एंड यहाँ पे हमने प्रोसेस को माइग्रेट कर दिया है P1 P2 P3 P4, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है P1 P2 P1 अकेला है, P1 P2 P3 एक क्यू में है, P4 P5 दोनों क्यू में है। इसमें यहाँ पे क्या है अलग अलग जो है वो हमारे जो P1 P2 P3 है, राइट। दिस इज P1 P2 P3। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है P1 P2 और P3 P4 को, यहाँ पे P1 P2 पहले काम करेंगे, आफ्टर दैट P3 P4 विल डू देयर वर्क। यहाँ पे हमने क्या किया है लोड को शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे अब क्या हो गया, पहले क्या था P1 P2 P3 ओनली 3 नोड्स आर वर्किंग ना, अभी यहाँ पे क्या हो गया P1 P2 P3 P4। यहाँ पे हमने जो प्रोसेसेस हैं उनको माइग्रेट कर दिया। ओके, आफ्टर दैट प्रोसेस माइग्रेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप, selection of a process that should be migrated, selection of the destination node to which the selected process should be migrated. Okay, हम पहले क्या करते हैं, हम we are selecting the process जिसको हमें migrate करना है, right? After that the destination node जिस पे हमें process को migrate करना है, and third one is actual transfer of the selected process to the destination node. जब हमने दोनों चीजों को select कर लिया that this process is going to migrate and the destination node, then we will actually transfer the processes. Okay, the first two steps are taken care by the processes migration policy and the third step is taken care by the process migration mechanism. Okay, so first क्या होगा, पहला जो decided चीज होंगी वो policy decide करेगी कि कौन सी process जो है वो migrate होनी है and which destination node are going to be selected for process migration, right? So and the third policy is actual migration process, जो जिसमें हम जो है वो process को migrate कर रहे हैं destination node के लिए, ठीक है। So desirable feature of good process migration are transparency. Transparency होनी चाहिए. The transparency is an important requirement for system that support process migration. The following level of transparency can be identified. Okay, so different type of transparency होनी चाहिए. Transparency क्या है, जो sender है and जो destination they should know the actual process of process migration. Okay, so first one is object access level transparency. Transparency at the object access level is a minimum requirement for a system to support non-primitive process migration facilities. If a system support transparency at object access level, access to objects such as file and device can be done in location independent manner. Thus, the object access level transparency allow free initiation of the program at arbitrary node. Of course, to support transparency at object access level, the system must provide mechanism for transparent object naming and locating. जब हम object को किसी object लेवल पे हम ट्रांसपेरेंटी देख रहे हैं तो इट शुड सपोर्ट द ऑब्जेक्ट एक्सेस लेवल ट्रांसपेरेंसी। क्यों, क्योंकि जो भी फाइल है, जो भी डिवाइसेस, जो भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम लोग सेंड कर रहे हैं उसका एक जो लोकेशन है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो डेस्टिनेशन नोड को पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट मिनिमल इंटरफेरेंस, ये जो मैंने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरी डेफिनेशन इसलिए दी हुई है ताकि आप एग्जाम में लिख पाए। ओके, so next is minimal interference. Migration of a process should cause minimal interference. Yeah, next is minimal interference. Migration of a process should be cause minimal interference to the progress of the process involved of the system as whole. One method to achieve this by minimizing the freezing time of the process then migrator. Freezing time कौन सा था, this is the freezing time. ये रहा freezing time, मैंने आपको पहले बताया कौन सा होता है freezing time। तो जब हम इसको माइग्रेट कर दे, इसको मिनिमाइज कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे और ज्यादा अच्छा जो हमारा माइग्रेशन है, जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट मिनिमल रेजिडुअल डिपेंडेंसी। तो मिनिमल रेजिडुअल डिपेंडेंसी क्या हुआ, नो रेजिडुअल डिपेंडेंसी शुड बी लेफ्ट ऑन द प्रीवियस नोड दैट इज माइग्रेटेड प्रोसेस शुड नॉट बी एनीवे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन इट्स प्रीवियस नोड। ओके, जब एक नोड को दूसरी नोड से, एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस में हम लोगों ने माइग्रेट कर दिया है तो उसके ऊपर पिछले वाले नोड की कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी जब वो दूसरे प्रोसेस के पास जा रही है तो वो उसका काम करेगी ना, तो अगर उसके पीछे भी उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल टर्म में मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारे हो सकता है कि दो जो असाइनमेंट्स है हमें बनानी है, राइट, दो असाइनमेंट बनानी है हमें। फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, दो असाइनमेंट बनानी है तो हमें क्या होगा, पहले हम एक असाइनमेंट बनाएंगे, वो खत्म करेंगे तो ही तो दूसरी असाइनमेंट बनाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि एक असाइनमेंट आधा बनाया वहां पे छोड़ दिया, अभी
फिर मैं दूसरा बनाऊंगा, फिर उसको आधा छोड़ के फिर फर्स्ट वाले का करूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। हम फर्स्ट असाइनमेंट पहले कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट विल डू द सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। सेम वही यहाँ पे मतलब हुआ मिनिमल रेजिडुअल डिपेंडेंसी, मतलब पहले वाले के काम की दूसरे प्रोसेस के पास जाने के बाद उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ओके। Third is efficiency. Efficiency is another major issue in implementing process migration. The main source of inefficiency involved with the process migrations are as follow. The time required for migrating a process. जब हम प्रोसेस को माइग्रेट कर रहे हैं, जो टाइम लगता है वो भी हमारी एफिशिएंसी को थोड़ा वो करता है, कम करता है। द कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ढूंढ रहे हैं, जब माइग्रेट प्रोसेस के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, that will increase the cost. Okay, the cost of supporting remote execution once the process is migrated. So basically जब हमारी cost improve हो रही है तो जो हमारी efficiency है वो low हो रही है, ठीक है। After that, robustness. The process migration mechanism must also be robust in the sense that the failure of a node other than one on which a process is currently running should not be any way affect the accessibility or execution of that process, okay. After that, the final one is communication between co-processor of the job. One further exploration of process migration is the parallel processing among the processes of a single job distributed over several nodes, okay. जब हम several node के ऊपर jobs को distribute करते हैं तो भी हमें ध्यान रखना है, जब हमारा कम्युनिकेशन बन रहा है जो को प्रोसेसेस में है, जो को प्रोसेसेस हैं, राइट, एक प्रोसेस उसके को प्रोसेसेस में हम बना सकते हैं ना, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम किसी भी चीज का माइग्रेशन कर रहे हो। मोर ओवर, इफ दिस फैसिलिटी इज सपोर्टेड टू रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट दिस को प्रोसेस एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हमें ये प्रोसेस जो है वो यूज करना है, कम्युनिकेशन कॉस्ट को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तो जो को प्रोसेसेस है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करनी चाहिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। सो ये वीडियो में हमने क्या क्या देखा? द फर्स्ट वन इज प्रोसेस. What is process management? After that we have seen the processes. What are the processes? What are the normal term for processes? After that we studied process management. In process management we study process allocation, process migration, threads. So in this video we covered the process allocation and process migration. In next video we are going to cover the थ्रेड्स, ओके। सो आफ्टर दैट व्हाट आर द प्रोसेस एलोकेशन, हम प्रोसेस कैसे किसी दूसरी डिवाइस को एलोकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस एलोकेशन। इसमें दो अप्रोचेस थी, सेंट्रलाइज अप्रोच एंड द हायरार्किकल अप्रोच। आफ्टर दैट वी स्टडीड प्रोसेस माइग्रेशन, ओके। आफ्टर दैट द फीचर्स ऑफ प्रोसेस माइग्रेशन मैकेनिज्म, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. So if you have any questions, any query regarding process management or process migration or process migration and all, then you can ask me in comment box. You can write, you can ask me any question regarding this topic, okay. So till then, bye.